हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। मसीह यीशु के असीम बाबरकत खुतमान नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा ने हमें प्यार किया, खूबसूरत दिन दिया, हिफाजत की और सलामती बख्शी। मेरे अज़ीज़ो, खुदा के शुक्रगुजारी करते हुए अपने होंठों का नजराना खुदावंद के हसूर पेश करते हैं, ताकि खुदा अपने लोगों को बेहद प्यार करता है। आइए हम कलाम मुकद्दस से सीखेंगे। लूका रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19 बाब और उसकी 28 आयत से ये बातें कहकर वो यरूशलेम में की तरफ आगे आगे चला। जब वो उस पहाड़ पर जो जैतून कहलाता है, सब बैतसबिया के पास नज़दीक पहुँचे, तो ऐसा हुआ कि उसने शागिर्दों दो से कहा कि ये कहकर भेजा कि सामने की गांव जाओ और उसमें दाखिल होते हुए एक गधी का बच्चा बांधा हुआ पाओगे। उसे पर कोई आदमी सवार नहीं हुआ, उसे खोल कर ले आओ। और अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो, तो उससे कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। बस जैसा उन्होंने कहा था, उन्होंने जाकर वैसा ही उन्हें खोलते उनसे कहा, वैसा ही पाया। जब गधी के बच्चे को खोल रहे थे, तो मालिकों ने आकर उससे कहा कि इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है। वो उसको यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डालकर यीशु सवार हो गया। जब वो जा रहे थे, तो सामने के अपने कपड़े रास्ता में बिछाते जा रहे थे। और जब वो शहर में बड़ी जैतून के पहाड़ के तक पहुँचे, तो शागिर्दों की उन सब मौजों को देखकर उन्होंने खुश होकर कहा, बुलंद आवाज़ से पुकारा, खुदावंद की हमद हो और कि मुबारक वो आदमी है, वो है जो बादशाह जो खुदावंद के नाम पे आता है। आसमान पर सलाह और आल में बाला खुदा को जलाल, आल में बाला जलाल। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद यीशु मसीह
آج دیکھنے کہ گدھے کے اوپر سواری کی ہے یسوع نے. گدھا کس چیز کی علامت ہے؟ جب بادشاہ گھوڑے پر آتے تھے یا کسی اور چیز پر آتے تھے تو اس کا مطلب تھا کہ یہ جنگ کے لیے آ چکا ہے، تیار ہے. تو جب گدھے پہ آتے تھے تو پھر یہ جان لیتے تھے کہ یہ صلح کے لیے آیا ہے. میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل جب پیدا ہو رہے تو دوسرے باب میں بھی ظاہر ہوتے ہیں یسوع صلح کے لیے آئے ہیں، کیونکہ اپنے لوگوں کی صلح، اپنے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے. اور جب ہوشانہ کے نعرے لگائے تو ہوشانہ کا مطلب ہے کہ ہم شفا چاہتے ہیں، ہوشانہ شفا چاہتے ہیں. اور جب انہوں نے ہوشانہ کے نعرے لگائے تو کیا وہ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں کیا ملے؟ نجات ملے. نجات کے لیے تیار ہیں. ان لوگوں نے یسوع کو صلیب پہ دیا، ان لوگوں نے یسوع کو ہوشانہ کے نعرے بھی لگائے، ان لوگوں نے کھجوروں کی ڈالیاں بھی بچھائی، ان لوگوں نے یسوع کو بڑے پیار محبت خلوص سے استقبال بھی کیا. یسوع کے لیے سونا بھی لے کر آئے، یسوع کے لیے کتنا کچھ کیا. لیکن یسوع کو پھر ان لوگوں نے صلیب پر چڑھانے کے لیے بھی زور زور سے کہا کہ اسے صلیب دو. ہاللیلویا. آج ہم بھی اپنے گناہ کو، اپنی خودی کو، اپنی بدکاری کو، اپنے برے کاموں کو چھوڑتے نہیں تو ہم کہتے ہیں مسیح ہیں. جب تک ہم اپنی زندگی پر غور نہیں کرتے، توجہ نہیں کرتے، خیال نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے تو پھر ہم حاصل کیا کریں گے؟ ہم بھی انہی لوگوں میں ہیں. کل کتنے لوگوں نے، کتنے چرچوں نے، کتنے پاسبانوں نے جلوس نکالے اور کتنوں نے نہیں نکالے. لیکن آج بھی ہم سب کچھ کر رہے ہیں. شرابیں پیتے ہیں، چرسیں پیتے ہیں، برے کام کرتے ہیں، لیکن خدا کو اپنا دل نہیں دے رہے، خدا کی طرف لوٹتے نہیں. میرے عزیزو، سب سے زیادہ پیار کرنے والا پطرس تھا، جس نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا کہ یسوع میں تیرے ساتھ جیوں گا اور مروں گا. تو پطرس نے، جب پطرس یسوع کو پکڑنے کے لیے آئے تو پطرس نے اپنی تلوار میان سے نکال کر جو سپاہی ان لوگوں کے ساتھ آئے تھے تو اس کا کان اتار دیا. تو یسوع نے پطرس کو کہا کہ اپنی تلوار اپنے میان میں بند کر. اب تلوار نہیں، جو تلوار چلاتا ہے وہ تلوار سے کاٹا جائے گا. میرے عزیزو، یسوع نے اف نہیں کی، یسوع کو پکڑ کر لے گئے اور پطرس 3 مرتبہ یسوع کا انکار کر دیا. اور یسوع نے اس سے کہا تھا کہ تم مرغ کی بانگ سے پہلے 3 مرتبہ میرا انکار کرے گا. اور یسوع کو اس نے برا بھی کہہ دیا، کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے جو نہ کہنے والے تھے.
پھر یسوع کو اس نے جب دیکھا کہ یسوع نے جب مرغ نے بانگ دی 3 مرتبہ انکار ہو چکا، تو پھر زار زار رویا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے۔ ہم نے بھی اپنی زندگی پر کبھی توجہ نہیں کی، کبھی غور نہیں کیا، کبھی فکر نہیں کیا کہ ہمارے لیے آسمان کی بادشاہی شامل میں نہیں ہوں گے جب ہم یسوع کا اقرار نہیں کر رہے، جب یسوع کو اپنی زندگی میں لے نہیں رہے، جب یسوع کو اپنی زندگی کے اندر خوشانہ کے نعرے تو لگاتے ہیں، کپڑے تو بچھاتے ہیں، بڑی خدمت گزاری کرتے ہیں، لیکن یسوع کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر رہے۔ میرے عزیزو، ایک نیک آدمی تھا جو ہر وقت خدا سے باتیں کرتا تھا، اور گاؤں کے لوگوں نے، اس علاقہ کے لوگوں نے، اس حدود کے لوگوں نے کہا کہ یہ تو ہر وقت ایویں پاگل ہے، چھوڑو اسے۔ اور ایک دن وقت آیا تو وہ پہاڑوں کی غار کے اندر چلا گیا، اور ایک بادشاہ صبح سویرے سیر کے لیے نکلا، اور بادشاہ نے دیکھا کہ لوکا رسول کی معرفت لکھا ہوا ایک صفحہ اسے ملا، جس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ اگر تمہارا رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا تو تم پہاڑ کو کہو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر سمندر میں چلا جائے گا۔ اور میرے عزیزو، جب بادشاہ نے وہ صفحہ پکڑا، پڑھا، اور اس نے اپنے پاس رکھ لیا، جب تخت پہ بیٹھا آ کر، تو تخت پہ بیٹھ کر سب کرسچن، پادری، پاسبان، چودھری، جتنے بھی یعنی کہ پوچھ گیچھ والے، آگے پیچھے بات کرنے والے، ان کو بلا لیا۔ جب بلا لیا تو ان سے کہا، یہ پہاڑ اگر 3 دن کے اندر یہاں سے نہ اٹھایا گیا تو آپ کو اور آپ کے بیویوں، بچوں، بیٹیوں اور ایک زندگی کو تلوار کے ساتھ قلم کیا جائے گا۔ وہاں پہ کوئی بات نہیں کر سکتے تھے کیونکہ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا۔ پھر وہ سب لوگ وہاں پہ اس نے اکٹھے کر کے بٹھا دیے تاکہ یہ بھاگے نہ، اور ان نے کیا کیا، دعا میں ٹھہر گئے۔ اور جب دعا کر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس بزرگ کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے دعا کریں گے تو ہمارے لیے اچھا ہو جائے گا، بچ جائیں گے۔ ایک دن وہ تیسرے دن جا کر شام کو ملا پہاڑوں کی غار سے، تو جب وہ ملا تو اس نے دیکھتے وقت کہا، ہاں میں جان گیا ہوں کہ اب آپ پہ مصیبت آئی ہے تو مجھے ڈھونڈتے ہیں، کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہونا۔ اور انہوں نے جا کر وہاں پہ بیٹھ گئے اور دعا کر رہے تھے، اور بچے اور عورت ذات ورلاپ کر رہے تھے کہ اب جیسے جیسے دن غروب ہو رہا ہے، دن غروب ہو گیا تو ہمیں قتل کیا جائے گا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دعا میں ٹھہر گئے، زیادہ دعا میں جا رہے تھے، اور آدھا سورج اندر ہے اور آدھا باہر تھا۔
और पहाड़ की कैंकरें कैंकरें होकर, रेदा रेदा होकर वो पहाड़ समंदर के अंदर। और उस बादशाह ने कहा, जितने लोग जो लोग इनके खुदा को बुरा कहेगा या को मुखालिफ बात करेगा, उसका सर कलम किया जाएगा। और हम भी उसी के साथ वफादारी के साथ उस खुदा को पुकारेंगे जिस खुदा ने इनकी दुआ सुनी और पहाड़ को रेजा रेजा कर दिया। मेरे अजीजों, हम होशाना के नारे तो लगाते हैं, कपड़े यीशु के लिए बिछाते हैं, लेकिन हमारा दिल अभी तक यीशु के लिए खालिस नहीं हुआ। यीशु ने क्या कहा था? अपनी खुदी का इनकार कर। पतरस ने इनकार कर दिया, लेकिन 3 मर्तबा फिर यीशु का भी इनकार कर दिया कि यीशु तुम्हें जानता ही नहीं, और बुरा अल्फाज भी कह दिया। लेकिन यीशु ने फिर उसे बरकत दी जब वो अपनी जिंदगी पर जार जार रोया और पछताया। क्या यीशु, जो तूने कहा था वो पूरा हो चुका है। आज हम भी यीशु के लिए नारे लगाते हैं, यीशु के लिए बड़ा कुछ सोचते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए हमने कुछ नहीं सोचा। मेरे अज़ीज़ों, अपनी जिंदगी तब आसमान की बादशाही में दाखिल होगी जब हम अपने आप को साफ करेंगे, अपनी जिंदगी को साफ करेंगे, अपने आप को खुदा के ताबे करेंगे, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपनी जिंदगी को ले आएंगे। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर अपने लोगों की गुनाहों की माफी के लिए यीशु जमीन पर आया था। आज जब यरूशलेम की गलियों से गुजरते हैं तो होशाना के नारे लगाते हैं। और मेरे अज़ीज़ों, यरूशलेम की गलियों से गुजर रहे थे तो यरूशलेम की गलियों के अंदर बेटियां बहनें रोती थी। तो यीशु ने कहा, मुझ पर नहीं, अपने पर और अपनी औलाद पर मातम करो। क्यों? मैं तो हरा दराहत हूं, मेरे साथ ये सलूक किया गया, आपके साथ क्या किया जाएगा? आज हमें जरूरत है तौबा करें, ईमान लाएं। वैसे तो हम बड़े दिन कलाम सुनते हैं, बड़े दिन इबादत करते हैं और खुदा के कलाम के साथ साथ बहस भी करते हैं। जिस बात का हमें इल्म नहीं होता वो बातें हम करना जानते हैं, लेकिन जब खुदा की बारी आती है तो फिर खुदा को भूल जाते हैं। आइए आज की कलाम मुकद्दस के लिए हम अपने आप को तैयार करें। होशाना का नारा हमें शिफा दे, हमें बुझा ले, हमें निजात दे, हमें जिंदगी दे। तो आज हमें जरूरत है, हमने जिंदगी अपनी आप बनानी है। मैं पंजाबी च कभी कभी एक मिसाल देता हूं, माँ जन्म देती है, करम आप बनाना है। इस जमीन पर हम आए हैं, खुदा ने भेजा है, माँ ने जन्म दिया है, बाप ने पाला है, और हमने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए खुदा के कलाम पर ईमान लाकर अपने आप को तैयार करना है। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत तो आए। मेरे अज़ीज़ों, दुआ मांगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु नासरी, हम तेरा शुक्र करते हैं, अपनी पाक रूह को भेज
अपना जख्मी हाथ बढ़ा, शरीरों के मुंह बंद करना, गंदी तस्वीरों के मुंह बंद करना, शैतान की चालाकियां बंद करना। आज का तेरे हसूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, तमाम पासवानों के साथ हो। अपनी पनाह अपनी लपेट में रख। तमाम खतरे खौफ से बचाना, अबलीस के मंसूबों को बंद करना, अबलीस की चालाकियों को कुचलना। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। वापस मानी आज की सुबह के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे जमीन पर भेजा ताकि मैं तेरे कलाम को बयान करूं और तेरे कलाम को कौमों कबीलों तक पहुंचा सकूं। आज के कलाम के वसीला खुदावन सुनने वाले लोगों को बरकत देना, और जहां मैं नहीं पहुंच सका खुदावन तेरा कलाम पहुंचता है। खुदावन तो उन लोगों को अपने जलाल के लिए बेदार कर, बरकत से लबरेज कर और रुल कुद्दस से मामूर कर। आज की सारी रहनुमाई के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं, बच्चों के लिए तेरा शुक्र गुजार हूँ। खुदावन तो अपनी पाक रूह को भेज, अपने जख्मी हाथ को बढ़ा और शरीरों के मुंह बंद कर, गंदी तासीरों के मुंह बंद कर, शैतान की चालाकियां बंद कर। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र गुजार हूँ। मेरी कलीसिया के साथ हो, मेरी कौम के साथ हो, मेरे मुल्क के साथ हो, मेरे असीदोकारी के साथ हो, मेरे बच्चों के साथ हो। मेरे घर को घराना को संभाल, अपनी लपेट में ले, अपनी लहू की धार के नीचे रख। तमाम कमजोरियों पर गाले आने वाले रोग बख्श दे। कोई और ऐसा नाम नहीं बख्शा गया न आसमान के तले न जमीन के ऊपर, सब नामों में तेरा नाम आला है। तेरे नाम में कुदरत है, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माना ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरी शुक्र गुजारी करता हूँ। मेरी कलीसिया के साथ साथ रहना, मेरे घराने के साथ रहना, बच्चों के साथ रहना, मेरे आस पास पड़ोसियों के साथ रहना, गली मोहल्ला आबादी के साथ रहना, मेरे शहर के साथ रहना, मेरे मुल्क के साथ रहना, मेरे मुल्क के हाकिमों के साथ रहना, मेरे मुल्क की कबीना के साथ रहना। अरे बाबा बाबा बाबी बीएस, मेरे मुल्क के अदारों के साथ रहना, मेरे मुल्क के पाक फौज के साथ रहना, मेरे मुल्क के अदलिया के साथ रहना। वापस मानी अपना हाथ बढ़ाना और बरकत देना, कमजोरियों को दूर करना। बदीनो इंसान कमजोर है, गिरता है और उठाता, तो ही उठाता है। खुदावंद तमाम पासबानों के साथ हो, तमाम चर्च के साथ हो, तमाम खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल करना। आए खुदावंद तेरी शुक्र गुजारी करते हैं, बड़ी बरकत दे। आज का तेरे हजूर झुकना बखूर की माने ठहरे। इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, बड़ी बरकत दे। दुआ को सुन कबूल कर, मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम में बढ़ें और तरक्की पाएं। मैं उन बीमारों को तेरे मज़बा पर लाता हूँ जो तरह तरह की बीमारियों में परेशानी की हालत में हैं, जिनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, तो उन्हें जवाब नहीं देता, तो उन्हें शिफा देता है। वापस मानी अपना हाथ बढ़ा और बरकत दे। उन बेटियों को जो बे औलाद हैं, उनको औलाद जैसी मीरास दे, ताकि वो अपनी जिंदगी के अंदर खुशी के ऊंचे दिन देखें और तेरी शुक्र गुजारी करें और तेरे नाम को जलाल दें। तेरा जलाल जिंदगी से निकले। बच्चों के साथ हो, जो बच्चे पेपर दे चुके,
खुदावन तुम की रहनुमाई कर, अपना आसमान खोल, अपनी पाक रुख को भेज, अपने जलाल को जाहिर कर। आज का तेरे हाथ से छिकना बखूर की माने ठहरे। आए खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, बड़ी बरकत दे, मेरी दुआ को सुन कबूल कर। मसीह यीशु के अजीम बाबरकत नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावन की सिखाई हुई दुआ में सब शारी को, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसा आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तो हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बुराई से बचा कर। जो बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत अब से लेकर तमाम कलीसिया के साथ, ईमानदारों के साथ, हाज़िर जमात और मुकस्सिन लोगों के साथ, बाप इब्राहिम की नस्ल के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन।